Good morning, everyone. Today we will continue the same chapter 5 retirement, and today's topic is treatment of goodwill. How will we calculate goodwill in case of retirement of a partner, and why will we calculate this share? Because the retiring partner is entitled to his or her share of goodwill at the time of retirement, because the goodwill is the result of the efforts of all the partners. जो रिटायरिंग पार्टनर है, जब वो रिटायर होगा, रिटायरमेंट के समय अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगा. क्यों? क्योंकि गुडविल जो है सभी पार्टनर्स के एफर्ट्स का रिजल्ट है, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग वन इन द पास्ट. बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर ने भी एफर्ट्स किए हैं फर्म में, तो ही विल आल्सो टेक हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल विद हिम. So how will you pass journal entry in this case? Will pass the journal entry. The remaining or gaining partners capital account debit to retiring partners capital account. यानी retiring partner जो है उसने sacrifice किया अपना शेयर, तो he is a sacrificing partner and remaining partners are gaining partners. तो gaining partners को हम हमेशा डेबिट करेंगे और sacrificing partner को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे. तो that journal entry will be the remaining partners capital account debit to retiring partners capital account, and we can also say the gaining partners will be debit and the sacrificing partners will be credit. In this way we will pass the journal entry. But you should keep one thing in your mind before passing this journal entry, because we have to pass this entry in gaining ratio. We have to divide the retiring partner share in remaining partner in gaining ratio. So first of all we have to calculate gaining ratio, then after that we have to pass the journal entry. Let's take an example. P, Q and R are equal partners. R retires and the goodwill of the firm is valued at rupees 3,60,000. फर्म की गुडविल इज गिवन है, बट यह रिटायर कौन हो रहा है? आर हो रहा है, तो हमें किसका शेयर चाहिए? आर का. एंड आर शेयर इज 1/3 बिकॉज दीज थ्री आर इक्वल पार्टनर्स. इन दिस वे वी विल कैलकुलेट आर्स शेयर ऑफ गुडविल. इट विल बी 3,60,000 multiply 1/3, it will be 1,20,000. Now, no goodwill account appears as yet in the books of the firm. कोई पुरानी गुडविल नहीं है, इट मीन्स नो ओल्ड गुडविल इज अपेयरिंग, तो हमें इसमें राइट ऑफ करने की भी नीड नहीं है. यानी यहाँ पर फर्म की गुडविल 3,60,000 है और हमने आर का शेयर निकाल लिया 1/3, इट इज़ 1,20,000. तो हमें आर को जो है शेयर देना है, और कौन सी रेशो में देना है? पी और क्यू गेनी रेशो में देंगे. तो पी क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, एंड पी क्यू की न्यू रेशो भी गिवन है. अगर आपके पास न्यू रेशो गिवन ना होती तो गेनी रेशो रिमेनिंग रेशो होती, न्यू रेशो भी रिमेनिंग होती. अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. नाउ हेयर इन दिस क्वेश्चन बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशो आर गिवन, तो वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशो बाय अप्लाइंग द फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. So first of all, before passing these journal entries, we will have to calculate gaining ratio. The formula of gaining ratio is new minus old. So in this way, P gains 4/15 and Q gains 1/15. And the gaining ratio will be 4:1. And we will divide 1,20,000 in 4:1. The journal entry will be remaining partner are P and Q. P is capital account debit, Q is capital account debit to R's capital account. So 1,20,000 will be divided between P and Q in the gaining ratio, and gaining ratio is 4:1. So it will be 96,000 and 24,000. But when the goodwill already appears in the books, earlier this topic you have done in admission chapter, the same topic is here. When goodwill already appears in the big books means it is old goodwill. Old goodwill means it is to be written off. किसको रिटर्न ऑफ करना है? टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पर तो सभी ओल्ड हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. द एंट्री विल बी सेम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो. You should keep one thing in your mind while passing this entry. This is the old goodwill. Old partners will be adapted to goodwill in old ratio.
ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होगी बिकॉज दिस इज द ओल्ड गुडविल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC are partners. Their ratio is 3:1. B retires and his share of goodwill is valued at rupees 30,000. Here in this question, B's share of goodwill is given 30,000. In previous question, firm's goodwill was given. In that question, we have calculated the retiring partner's goodwill share. But here in this question, retiring partner goodwill share is given to you. आपको यहाँ given है तो आपको calculate करने की need नहीं है. And goodwill already appears in the books. अब यहाँ ओल्ड गुडविल भी गिवन है क्वेश्चन में 48,000. एंड द न्यू रेशियो ऑफ A and C इज आल्सो गिवन. दिस इज 3:2 मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो व्हेन ओल्ड गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स, पहले से पुरानी गुडविल है तो फर्स्ट एंट्री हम इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ की करेंगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. This 48,000 will be written off between these partners in old ratio, and old ratio is here 3:1. So in this way, A's capital will be 24,000, B's share will be 16, and C share will be 8,000. Now next entry will be the new partners goodwill, the old partners. Acha, before passing this entry, you will have to calculate gaining ratio by applying the same formula as in the previous question. New ratio minus old ratio. The gaining ratio will be 3:7. So we will pass the journal entry. A is capital account debit, C is capital account debit to B's capital account. B's का शेयर दिया हुआ है 30,000. तो in gaining ratio will pass this entry and gaining ratio is 3:7 in this question. So 9,000 and 21,000 is the share of A and C. Now next question, very much important question of board. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. B retires and selling his share of A and profit to A and C for rupees 81,000. यानी अपना शेयर वो A और C को जो बेच रहे हैं कैसे बेच रहे हैं 81,000? रुपीज़ 36,000 being paid by A and 45,000 by C. In this question आपको एक क्लियर कर दिया हुआ है कि 81,000 उसको देना है. किसको देना है? रिटायरिंग पार्टनर को, B को. कौन देंगे? A और C. यानी A जो 36,000 देगा और C देगा 45,000. इन दिस वे अब आपको गेनी रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी, सिंपल यू विल पास जर्नल एंट्री. क्या करोगे? A डेबिट 36,000, C डेबिट 45,000 टू B. तो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 81,000. बट यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है. क्या दी हुई है? द प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर B's रिटायरमेंट वॉज 1,05,000. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1,05,000 रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है. इट मीन्स दिस इज अ न्यू प्रॉफिट. अब न्यू प्रॉफिट दिया हो तो इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू पार्टनर्स में. अब यहाँ न्यू पार्टनर्स कौन है? AOC है. तो AOC में कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू रेशियो में. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. अब जो गेनिंग शेयर निकाला जो क्वेश्चन में गिवन है 36,000 एंड 45,000, दिस इज अ गेनिंग रेशियो. तो गेनिंग शेयर से हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे. तो गेनिंग रेशियो है 12/72 एंड 15/72, यानी 4:5 आ गई ना गेनिंग रेशियो. इन दिस वे A ने कितना गेन किया और C ने कितना गेन किया आ गया. तो विल कैलकुलेट द न्यू रेशियो 2/3 एंड 1/3. तो जो आपके पास प्रॉफिट आया है क्वेश्चन में गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है? 1,05,000. दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू A and C in new ratio, and new ratio here you have calculated 2:1. Then A share will be 70,000 and B share will be 35,000. In this way we will pass the journal entry. A's capital account first will pass the entry of goodwill. A's capital account debit, C's capital account debit to B. Already I told you about this entry. Now the second entry is profit and loss appropriation account debit to new partners in new ratio. And new ratio is 2:1. तो 1,05,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल बी 70,000 एंड 35,000. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हिडन गुडविल. अब हिडन गुडविल क्या है? देखो इन दिस क्वेश्चन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द हिडन गुडविल. ABC आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 4, शेयर गिवन है यहाँ पर 4/9, 3/9 एंड 2/9. देन इन दिस वे रेशियो विल बी 4:3 एंड 2. नाउ B रिटायर्स, B चला गया and his capital after making adjustment for reserves and gain on evaluation stands at rupees 1,39,000. अब ये कहा गया कि B जब रिटायर हो रहा है तो उसका सब कुछ देने के बाद
यानी रिजर्व्स देने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद, रिवैल्यूएशन का सब कुछ देने के बाद द प्रॉफिट हिज शेयर इज़ 1,39,000. But C agrees to pay him 1,50,000. A and C agrees to pay A. Here A is written, not 4. A and C agrees to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. बनता तो उसका 1,39,200 शेयर है, बट उसे दिया कितना जा रहा है 1,50,000. इट मीन्स डिफरेंस इज द गुडविल. अब आपकी गुडविल यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1,50,000 माइनस 1,39,200. It is 10,800. Now new ratio is also given. We will calculate the gaining ratio by applying that formula. New minus old ratio. It will be 13:11. So 10,800 will be distributed between A and C in 13:11. So it will be 5850 and 4950. And journal entry for this will be A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account. It will be 5850, 4950 and 10,800. बट अब क्या है, अब जब आप गेनिंग रेशियो निकालते हो, कई बार क्या होता है गेनिंग रेशियो निकालते निकालते सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाता है पार्टनर का. जैसे आपने एडमिशन में भी किया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते निकालते एक पार्टनर का माइनस में शेयर आ गया तो वो क्या हो जाता था गेनिंग शेयर हो जाता था. तो लाइकवाइज यहाँ पर भी ऐसा है कि जब आप गेनिंग रेशियो निकालते हो तो इन दिस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालते निकालते किसी पार्टनर का शेयर माइनस में आ जाता है. तो यहाँ पर जब आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया तो बी का शेयर माइनस में आ गया, तो इट मीन्स बी इज़ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है. तो यहाँ पर बी भी क्रेडिट हो गया और रिटायरिंग पार्टनर जो होगा वो भी क्रेडिट हो गया. तो डेबिट कौन हो गया सिर्फ सी. तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट. ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशियो 654, उनकी कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में. ऑन 1 अप्रैल ए रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी 1:4. अब न्यू रेशियो निकाल दी हुई है, ओल्ड भी गिवन है, तो गेनिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे. ऑन ए सी रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी थी 1,80,000. ठीक है, बाकी क्लियर करके अब आपको सबसे पहले गुडविल की एंट्री करने के लिए पहले तो आप जो है रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालोगे. यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पर रिटायर हो रहा है ए. तो ए का जो शेयर निकालोगे गुडविल का 1,80,000 मल्टीप्लाई ए का शेयर कितना है 6/11 एंड 415 6/15. तो इट विल बी जितना भी आएगा आप 72,000 आएगा. क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं किया हुआ, मैं कर देती हूँ 1,80,000 माइनस 6/15. तो सी का शेयर आ जाएगा, सॉरी ए का शेयर आ जाएगा 72,000. ओके, नाउ यू विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो निकालते हुए आपका क्या हुआ, बी का शेयर माइनस में आ गया. अब जिसका माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा. अब सेक्रीफाइसिंग वाला बी तो क्रेडिट होगा. अब करेंगे क्या, अब बी को तो क्रेडिट कर देंगे, ए को भी क्रेडिट कर देंगे. ए तो क्रेडिट होना ही था, बी को भी क्रेडिट कर देंगे, सी को डेबिट कर देंगे. तो इनकी अमाउंट कैसे निकलेगी, ए की अमाउंट तो हमें पता है कि 72,000 है, इनकी अमाउंट कैसे निकलेगी, वेरी मच सिंपल. तो इसके लिए आपको फर्म की गुडविल चाहिए. बस फर्म की गुडविल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000. तो जितना बी का कॉन्ट्रीब्यूशन है बी से मल्टीप्लाई कर दो, जितना सी का सी से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से जो शेयर आ जाएगा. तो आपके पास 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/15 करोगे तो बी का शेयर आ जाएगा 24 एंड 1/80 मल्टीप्लाई कितना करोगे 8/15, तो सी का शेयर आ जाएगा 96. अब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करोगे तो इक्वल ही आएगा. ये अगर इक्वल नहीं है तो यू कमिटेड अ मिस्टेक. इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 16 to 25. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.